Good morning, students. This is Pradhuman sir again in front of you, and here comes with a new video on the topic of your seventh. Wait a minute. It's I think ninth chapter. Okay. Yes, this is your ninth chapter, and basically in this video we are going to discuss about some remaining portion of the heading, that is sign out. Okay. So, what is the use and what is the purpose of sign out feature when we are using our Gmail ID or in a desktop or in any other's desktop or laptop? So what is the purpose of signing out? Okay, signing out of your Gmail ID or Gmail account. So the purpose is to, as I told you, that after not signing out, it's signing in. Okay, sign in means suppose you wanted to someone send you a mail in your Gmail account and you wanted to open it. So how could you open it? With the help of a desktop and with the help of an internet connection. You can just simply check in with the in Google search engine that Gmail account, and after clicking over the first link present in the desktop, okay, you will just simply watch that there will be a blue link naming Gmail account, and after that when you just simply click over it, it will open a new tab like this, and after that you will just simply type the Gmail, okay, means the username, the domain name, okay, username like Bajpayee Pradhuman and the domain name like @gmail.com, okay. Whether you can use also like Rediffmail, Hotmail and yahoomail.com. So these are some yahoo.com, rediffmail.com and hotmail.com. These are also a type of domain and such type of companies that provide you a mail ID, okay, with a free registration, means there is no charge. The making a account over a Gmail is totally free of cost, okay. There is no a single penny of charge will taken from you, so you can just simply make a Google account very easily. Now after that, the remaining portion. So before starting the remaining portion, I'm just simply wanted to give you a remembrance that if you are new here to my channel, then go there and subscribe my channel, press the bell icon, select all from the list so that you can get the notification of my video very firstly. And if you like the video, then press the like button and share this video with your friends and colleagues so that they can also get such type of wonderful information about such type of enormous topics, okay. So let's start with the first, not the first, is the fifth point of the remaining chapter, remaining topic of that, signing in into your account, okay. So the inbox of your newly opened account will appear with a mail from the Gmail team, okay, means when you just simply create a Gmail account, after creating it, a particular mail that is sent via Google team to you, okay, that is welcoming you in our team or in our domain, means you are very when you just simply completed any types anything like registration in the Gmail account, after that you get a welcome email via Google team, okay. So inbox keep a record of all the mail received by you from various people, means inbox is that place where you got mails, means suppose I send you a mail with the help of Gmail, okay, and after that when you receive your message, you will just simply check that mail in your inbox area, okay. Now after that, there are other folder at the left side of the page of the email account, such as sent mail, draft, spam, trash and so on, means there are much more folder naming sent, draft, spam, trash and others, okay. So you can also check them because suppose you sent a message to any particular person, and after that if you wanted to check that whether that mail is gone or not, if it is gone, then it will be moved to the sent folder, but if it is not sent to that particular person, that it will move into the unsent, okay, unsent box, okay, inbox and unsent box. So there are some things.
Now sent mail means this folder keep a record of mails that you have sent. Means that the particular mails to whom you sent, having a record of all the mails that you sent to that particular person in this folder. Now after the draft, what is the draft? This folder keep a record of all the mails that are waiting to be sent. Means here you can save your draft, save your mails for further checkout. Okay, means you wanted to send a mail, but the date is not today. Okay, the date is the day after tomorrow, or might be 2 days after. Okay, so after that you can just simply make a mail and save it to the draft. Okay, and after that when the date comes, you can just simply send it with the help of draft folder. Okay, now spam, what is that? This folder keep a record of all the mails that your mailbox identify on it own as junk mail. Means no uses of the mail. Suppose there are some mails which dignified that they are threatened and they are frauds. Okay, spam like is fraud. Okay, means you can just simply make sure that these all mails are to be a spam or a fraud, so they were automatically added in the spam folder so that you not get frauded with any type of cheater or a person. Okay, now after the trash, what is this? So this folder keep a record of all the deleted mails. Means trash is like a dustbin. Okay, dustbin in your home. Okay, so everything which is waste or get to be out from the house is gone to the trash or the dumping yard. So the trash folder is like a dumping yard where we can just simply delete our all the mails from the draft, from the sent box, from the unsent box, from the inbox, and from any other folder. Okay, so means whatever type of mail we deleted from any folder will go into the trash folder. And after, if you wanted to empty the trash folder, then you just simply click over the empty the trash folder option. Okay, after that you will find that all the mails are permanently deleted. There is a thing that I wanted to told you. Likewise, when you just simply deleted a file or a folder in your desktop, it will goes into the recycle bin, as all the mails which are accidentally or mightly deleted by you will go to the trash folder. Okay, so don't worry about it. If suppose there is an important mail of your dad, of your brother and sister, or of your mother, then you can just simply make sure that you just simply delete that mail, but don't worry about it. You can get your mail back with the help of trash folder, because in the trash folder all types of mails that you deleted, but you have to just simply remember the date. Okay, means the particular date or might be the time, because in a day you got, suppose you got 100 of mails. So suppose you deleted them, then you have to just simply remember the time when you received that mail from that particular party. Okay, so you can just simply make a detail over it, and after that you can find that mail in your trash folder. Okay, so trash is very important, and also a type of a dustbin. Okay, so dustbin is very important. Okay, because some of the waste thing that we just simply put into the dustbin will use in the future. So never completely delete your trash folder unless you don't want it. Okay, means if you want some mail that is might be important in future, then you can just simply make them store in trash folder, so that whenever in future you wanted to use them, you can just simply click over it, and after that you can use that mail with the help of trash folder. So don't delete it. Okay, now composing and sending an email. That how could you just simply compose? Means creating a mail. Okay, very easy process, nothing to do. You can just simply make an email with a very help. Okay, means just open the Gmail software in your smartphone, and you can also open your Gmail account in a desktop with the help of that I told you, that open Google Chrome or whatever type of
browser, web browser you have, you can open it. Okay, open the internet connection also, and after that type Gmail account. Okay, just type in the search bar that is Gmail account, and after that click on the enter button, or you can also click press the enter button, or also you can just simply click with the help of mouse over the search button. Okay, after it that you will just simply got a blue colored link in the first of the page, that is Gmail account, and after Gmail/account, and after that clicking over it, it will open a desktop or a window in front of you that will that wants your email ID, means the particular email ID that you created in the Gmail account, like bajpayeepradyuman@gmail.com is my Gmail ID. So you can just simply enter this ID in the email text bar, and after that click over the next, and after that you have to just simply type the password. What type of password you have, you can just simply type that particular password and click over the next or sign in option. You will find that your Gmail account will open in front of you in a pop-up style, and after that there is a plus sign in the desktop, might be in the top of the right corner or in the smartphone in the bottom of the right corner. Okay, so you can just simply click over the plus option, and after that you will just simply jump into the composing and sending mail. So what should there is a first step, that is click on the compose, that I give you the detail, that is plus sign. Okay, it will show here like this, you can just simply watch that. Here you can see that the compose sign, that is plus sign, and after that type the email address of the receiver in the to field, means where you got the to field, type the email address of the receiver. Okay, means that particular person you have sent that mail to. Okay, and after that type the subject in the subject field, type the message in the new message box. After typing the message, click on the send button. Okay, means after just when your mail is just simply completed. Likewise, a letter you are writing to your principal or your relatives, as per the following section, you can just simply use that particular details. Okay, means when you just simply write a letter to your principal, you just simply write to the principal. So in the to column you can write the principal. Okay, because you are writing the letter to the principal. Okay, so likewise in the to box you can just simply type the receiver's name, receiver's domain ID, the Gmail ID, and after that write the message whatever you wanted to write it. Okay, means the particular things, the particular subject. Okay, subject is that particular thing that you have to mention what is your aim or what is the purpose to read this mail. Okay, suppose अगर मैं आपसे कहूँ कि जैसे आपने मुझे कोई चीज़ भेजी, तो मैं आपका मेल क्यों पढूं, या मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ तो क्या पर्पस क्या है इसका. ठीक है, मतलब बच्चे ज़रूरी क्या है कि इस वीडियो को देखें, तो उसको समझाने के लिए मुझे एक ऐसी हेडिंग का यूज़ करना पड़ेगा जिसके ज़रिए बच्चे उस हेडिंग को समझें. ठीक है, जब सारे बच्चे उस हेडिंग को समझेंगे तो वो उस पर क्लिक करेंगे. ठीक है, तो इसीलिए हमें सब्जेक्ट में एक ऐसी हेडिंग को चूज़ करना चाहिए जो कि हमारे लिए मतलब यूज़र के लिए बेटर हो. ठीक है, ना आफ्टर दैट टाइप द पर्टिकुलर मैसेज. आपने मैसेज भी टाइप कर लिया. मैसेज में सिर्फ उतना ही लिखें जितना ज़रूरी है, क्योंकि फालतू की बात ज़रूर पसंद किसी को नहीं होती. इसके बाद जब आपका पूरा मैसेज आपको लगे कि हाँ आपका मेल कंप्लीट हो चुका है, आपने पूरा टाइप कर लिया है हर एक चीज़ को, और हाँ मेल सेंड करने से पहले एक बार पूरा चेक कर लें कि वेदर देयर इज़ अ ग्रामेटिकल और स्पेलिंग प्रॉब्लम, और द सैल्यूटेशन मीन्स अगर आप किसी बड़े को लिख रहे हैं जो आपसे उम्र में बड़ा है या आपसे पोस्ट में बड़ा है, तो उसके लिए आपने प्रॉपर सैल्यूटेशन यूज़ किए हैं, लाइक डियर, सर और वेदर एनीथिंग एल्स. ओके, और
यू कैन आल्सो चेक ऑल दीज थिंग्स। अगर कोई छोटा बच्चा है तब भी वहाँ पर डियर ही लगता है, बट वहाँ पर जो आपसे बड़ा कोई होगा तो डिपेंड करता है, अगर रिलेटिव है तो डियर, और अगर कोई पोस्ट में है देन यू कैन जस्ट सिंपली यूज द रिस्पेक्टेड सर ऑब्लिक मैडम। ओके, so proper salutation you have to just simply use it, and after checking all these things you can just simply click over the send button that is in the 5 option, and you will find that your mail has sent to that particular person in just a second। okay, यानी 1 सेकंड भी नहीं लगेगा और आपका मेल चुटकियों में वहाँ पहुँच जाएगा। नाउ सेंडिंग एन ईमेल टू मल्टीपल रिसिपिएंट। अब अगर आपको कोई मेल को अलग बहुत सारे लोगों को भेजना है तब वहाँ पर क्या करोगे? So you can send an email to many people at the same time. For this you can use the CC and BCC option. What is the CC and BCC? Carbon copy and blind carbon copy। तो क्या होता है? CC stand for carbon copy, CC display the email address of all the recipient। means ऐसा आप समझ सकते हैं कि जैसे व्हाट्सएप पर अगर हमें जब कभी कोई चीज़ों को भेजना होता है तो हम लोग उनको क्या करते हैं, पर्टिकुलर पर्सन्स को टैग कर लेते हैं। तो यहाँ पर सीसी का यूज़ भी ऐसा ही कुछ होता है, जिन जिनको हमको भेजना होता है हम उनको डायरेक्टली टैग कर लेते हैं। ठीक है। BCC स्टैंड फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपी। BCC हाइड द ईमेल एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट फ्रॉम द ईच अदर। यानी कि यहाँ पर मैसेज जो जाता है वो सभी को जाता है, लेकिन किसी का भी जो मेल ID होती है वो शो नहीं होती। ठीक है, इट इज़ जस्ट सिंपली hidden from all of them so that no one can get to be a personal। okay, now after this साइन आउट क्या है भाई? साइन आउट भी बहुत ज़रूरी है जब आपका काम कंप्लीट हो जाए। देखो, अगर आपका पर्सनल कंप्यूटर है तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हो सके तो हमेशा साइन आउट ज़रूर करें। कभी भी अपनी ईमेल आईडीज़ और फेसबुक आईडीज़ या वगैरह जो कोई भी आईडीज़ हैं आप उनको ओपन करके ना रखें, क्योंकि ओपन वो कहते हैं ना कि खुली हुई तिजोरी चोर को आमंत्रित करती है। तो कभी भी आप अपनी आईडीज़ को ओपन करके मत रखें। उससे क्या होता है कि माइट भी ऐसा हो सकता है कि आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम हो, आपकी आईडी हैक हो या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। ठीक है, तो उसके लिए हमेशा साइन आउट करके रखना चाहिए। इसके बाद दिया गया यू शुड ऑलवेज क्लोज योर ईमेल अकाउंट आफ्टर कंप्लीटिंग योर वर्क, दिस इज़ नोन एज साइन आउट। You must sign out from your account so that no one can else read your email or send unwanted emails using your email address। Means ये बात बिल्कुल सही है। सपोज़ देखो, मेरे पास जैसे मेरा पर्सनल लैपटॉप है तो मैं उसमें अपनी ईमेल आईडी को ओपन करके रखता हूँ, लेकिन जब भी मैं उसको मेरा वर्क कंप्लीट हो जाता है तो मैं उसको साइन आउट कर देता हूँ। ठीक है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं होती उसकी ज़्यादा। ठीक है, अगर कोई बहुत छोटा मोटा काम है तो उसके लिए फिर मैं अपने स्मार्टफोन का ही मतलब मोबाइल का यूज़ कर लेता हूँ। अगर कोई बड़ा काम होता है तो फिर वहाँ पर लैपटॉप का, क्योंकि टाइप करने में टाइम लगता है, लैपटॉप सबसे बेस्ट है इसके लिए। ठीक है, लेकिन जब कभी मैं किसी दूसरे के फ़ोन में या कहीं और अपने ईमेल एड्रेस को एंटर करता हूँ और वर्क करता हूँ, इन दैट कंडीशन मैं उसमें प्रेफर यही करूँगा कि जब भी आप किसी दूसरे व्यक्ति के मोबाइल में या लैपटॉप डेस्कटॉप पर आप अपनी जीमेल आईडी ओपन करें, जीमेल अकाउंट ओपन करें, तो उसको साइन आउट जरूर करें। साइन आउट करने का तरीका यहाँ दिया गया, टू साइन आउट योर email account follow these steps। so first of all click on the sign out icon on the top right corner of your browser window। यानी सबसे लास्ट में कॉर्नर पर, राइट कॉर्नर पर आपको साइन आउट विंडो आपको ऑप्शन दिखाई देगा, आप उस पर क्लिक करिए। वो वहाँ से एक मैसेज देगा दैट यू वांटेड टू साइन आउट, एंड after that what, click on the sign out button। this appearance of the screen as shown in the figure 9.12 confirm that you have to successfully sign out from the your email account। यानी कि जैसे ही आप साइन आउट पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नई विंडो खुलकर आएगी जो आपको ये कंफर्मेशन देगी कि हाँ आपने अपने ईमेल अकाउंट से साइन आउट कर लिया है। ओके, सो लेट अस मूव टू द गूगल ड्राइव। दैट व्हाट इज दैट गूगल ड्राइव? सो गूगल ड्राइव इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस because you need access to your computer to work on your files stored on it। to use a file on another system such as your smartphone you need to first transfer the file to it। यानी कि इस गूगल ड्राइव का काम सिर्फ इतना होता है कि ये आपके पूरे डाटा का बैकअप रखती है। ठीक है, मतलब आपके कंप्यूटर में या आपके मोबाइल फ़ोन में जो कोई भी डाटा पड़ा है, आपको सपोज़ कोई इमेज, कोई फ़ोटो चाहिए, ठीक है, आपने कोई डिजिटल कैमरा से, कोई DSLR से कोई फ़ोटो आपने खिंचवाई और आपने उसका एक बैकअप जो है अपनी जीमेल आईडी पे डाल दिया।
लेकिन आप सपोज़ कहीं जाते हैं, ठीक है, आप बाहर हैं और आपके पास आपका स्मार्टफोन या सपोज़ बाई चांस आप भूल जाते हैं, कभी कभार ऐसा होता है, तो इन दैट कंडीशन आप अपनी जीमेल आईडी के थ्रू आप उस DSLR पिक को वहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट आउट करवा सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ वाई अ गूगल ड्राइव और अ जीमेल अकाउंट इज़ वेरी इसेंशियल फॉर ऑल ऑफ अस, ठीक है। सिर्फ हम जीमेल आईडी से ईमेल ही सेंड नहीं कर सकते, उसके अलावा भी कई सारे काम हम लोग कर सकते हैं, जैसे हम अपने डाटा का एक बैकअप रख सकते हैं। दिस प्रॉब्लम इज सॉर्टेड आउट बाय टेक्नोलॉजी कॉल्ड क्लाउड कंप्यूटिंग, यानी कि क्लाउड कंप्यूटिंग होता है, आपको क्लाउड मेमोरी मिलती है लगभग 15 GB की, उस 15 GB में आप अपने डाटा को स्टोर करके रखते हैं। अगर आपको इससे ज़्यादा चाहिए देन यू कैन जस्ट सिंपली परचेज फ्रॉम द जीमेल अकाउंट, ओके। आप गूगल ड्राइव से कुछ उतना स्टोरेज परचेज भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन गूगल ड्राइव जो है वो आपको सिर्फ 15 GB का ही मेमोरी अवेलेबल कराता है। इसके बाद दिया गया है द टर्म क्लाउड रेफर टू द सर्विस सच एज गूगल ड्राइव अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, ओके। तो यहाँ पर गूगल ड्राइव में जो क्लाउड का टर्म जो यूज़ किया गया, जो वर्ड यूज़ किया गया, उसका मतलब है एक ह्यूज स्टोरेज, ठीक है, एक ऐसा स्टोरेज जहाँ पर बैकअप होता है, ठीक है। जैसे कि बरसात होती है तो बरसात में क्या होता है, पानी बरसता है, तो कौन सा पानी बरसता है, वो पानी जो अर्थ से एवापोरेट होकर ऊपर गया है, तो वो बेसिकली वहाँ पर स्टोर है। हमें जब ज़रूरत होगी या जब लगेगा कि हाँ यहाँ पर पानी की कमी है, तो वहाँ पर बादल जो होते हैं वो पानी, मतलब बेसिकली ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि बरसात हो ही, बट यहाँ पर कन्फर्म है कि बरसात, मतलब इन द कंप्यूटर लैंग्वेज यहाँ पर तो बरसात होनी ही है, क्योंकि आप जहाँ पर भी होंगे आप अपनी जीमेल आईडी से उस क्लाउड स्टोरेज से आप उसको ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। आफ्टर दैट यू कैन यूज़ गूगल ड्राइव टू स्टोर इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस सर्वर्स कंप्यूटर स्प्रेड वर्ल्ड वाइड। तो यहाँ पर आप, मैंने जैसा बताया कि आप अपने जीमेल आईडी को आप अपने पूरे वर्ल्ड वाइड यानी कि पूरे विश्व भर में आप कहीं पर भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। गूगल ड्राइव इज़ फ्री ऑनलाइन सर्विस, ये भी फ्री ऑनलाइन सर्विस है जो आपसे बिल्कुल भी कोई पैसा कोई चार्ज नहीं लेती, आपको फ्री में 15 GB प्रोवाइड कराती क्लाउड सर्विस, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको ज़्यादा डाटा चाहिए देन यू कैन परचेज इट, ओके। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 15 GB डाटा कोई भर पाएगा, ठीक है। बेसिकली मेरा अपना खुद का 2 या 3 GB डाटा मेरा फिल है, बकाया पूरा खाली है। नाउ यू कैन यूज़ इट टू क्रिएट एंड स्टोर डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन, यानी यहाँ पर आप कुछ भी स्टोर करके, मतलब जो कोई भी प्रकार का डाटा जो आपको स्टोर करके, मतलब कोई भी प्रकार की फाइल या कोई भी डॉक्यूमेंट है, स्प्रेडशीट है, प्रेजेंटेशन है, तो आप वहाँ पर उसको स्टोर करके रख सकते हैं। और आपको वर्ल्ड वाइड जहाँ पर भी उसको लेकर जाना है तो वो आप इजीली बस आपको उस जीमेल अकाउंट में एक्सेस करना है, और एक्सेस करते ही आपका जो क्या होगा, आपकी जो फाइल्स होंगी जो उसमें स्टोर होंगी वो सारी वहाँ पर खुल करके आ जाएंगी। द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन इट कैन बी यूज एंड एक्सेस फ्रॉम एनी डिवाइस दैट कैन वेट अ मिनट दैट कैन एक्सेस द इंटरनेट, यानी कि अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में और मोबाइल में इंटरनेट है देन यू कैन ईजिली एक्सेस टू योर जीमेल अकाउंट और गूगल ड्राइव। With the help of the internet, you can access to your whatever type of document, spreadsheet, presentation that you just simply stored in the Google Drive. Now after that, where all the emails you send and receive saved, यानी कि यहाँ पर भी आपके सारे मेल्स और ईमेल्स जो हैं आपके जो आपने सेंड किए हैं, मेल भेजे हैं या रिसीव किए हैं, वो सब सेव्ड होते हैं। इवन हेयर द आंसर इज़ अ क्लाउड सर्विस, even here the answer is a cloud service. You can use a cloud service such as Gmail or Hotmail to upload or download email or file online, यानी कि अगर आपको कोई भी ईमेल और जो डॉक्यूमेंट है जो आपने इसमें स्टोर गूगल ड्राइव में स्टोर करके रखा है, आप इजीली वहाँ से उसको एक्सेस करके डाउनलोड कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। बस आपको सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन चाहिए उसके लिए, ठीक है। नाउ इसके बाद दिया गया दिस कैन बी डन फ्रॉम एनी डिवाइस एट एनी लोकेशन, यानी कि ये किसी भी डिवाइस से हो सकता है, बस वो इंटरनेट से एक्सेस होनी चाहिए और उसमें वेब ब्राउज़र होना चाहिए, बस इतना पर्याप्त है। अगर किसी भी आपके कह लो कि किसी भी डिवाइस में अगर आपके वेब ब्राउज़र है, इंटरनेट कनेक्शन है, देन यू कैन जस्ट सिंपली एक्सेस टू योर जीमेल अकाउंट, ओके। तो यहाँ पर दिया गया टू एक्सेस द गूगल ड्राइव फॉलो दीज स्टेप्स। सबसे पहले क्या करना होगा, ओपन द गूगल वेबसाइट,
फिर से गूगल वेबसाइट यानी कि वही आपको अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना होगा। आफ्टर दैट क्लिक ऑन द ग्रिड आइकन नियर द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द गूगल पेज, यानी गूगल पेज में टॉप राइट कॉर्नर पर एक ग्रिड ऑप्शन दिया हुआ है और 9 इस तरह की बिंदु बने होंगे, छोटे छोटे डॉट्स जिनको बोलते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट क्लिक ऑन द ड्राइव आइकन। अब उसमें से आपको गूगल ड्राइव एक लिखा होगा या ड्राइव अकेले लिखा हो तो आप चेक कर लेना, वहाँ पर आप जा करके क्लिक कर सकते हैं। द ड्राइव साइन इन विंडो अपीयर, एंटर योर ईमेल एड्रेस एंड क्लिक ऑन द नेक्स्ट। वही चीज़ सेम जैसे आपने जीमेल में साइन इन किया था, सेम आपको जीमेल में साइन इन करके फिर आपको गूगल ड्राइव पे मतलब जो गूगल ग्रिड है उस पर क्लिक करना है। वहाँ पर आपको कई सारे टैब्स मिल जाएंगे, कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। वहाँ पर आपको गूगल ड्राइव मिलेगा, हैंगआउट मिल जाएगा और भी कई सारी चीज़ें मिलेंगी। आपको गूगल ड्राइव पे क्लिक करना है, फिर से वो आपसे आपका ईमेल और पासवर्ड मांगेगा, आपको दोनों एंटर करने। एंटर करते ही क्या होगा, द गूगल ड्राइव विंडो विल अपीयर इन फ्रंट ऑफ यू लाइक दिस। कुछ इस प्रकार से आपके सामने गूगल ड्राइव खुलकर आ जाएगी, ठीक है। ये देखो मैं आपको ग्रिड दिखाऊं, वो ग्रिड आपको यहाँ मिलेगी। देखिए सबसे लास्ट में लिखा ए के बगल में एक बेल आइकन बना है, उसकी जस्ट बगल में जो 9 डॉट्स बने हैं इसको कहते हैं गूगल ग्रिड, ओके। तो इस तरह की चीज़ें आपके सामने खुलकर आ जाएंगी। अब अपलोडिंग अ फाइल टू अ गूगल ड्राइव, अब ये तो सब चीज़ें हो गई। देखो बेटा ये सारी चीज़ें ही जो हैं प्रैक्टिकल चीज़ हैं, बिना प्रैक्टिकल की ये चीज़ नहीं आ सकती। तो इसके लिए मैं फर्दर फिर से यही कहूँगा कि अगर आपको घर में कोई इस तरह का नॉलेजेबल व्यक्ति है जो जानता है इसके बारे में, तो आप उनसे एक बार ज़रूर पूछें कि किस तरह से किसी फाइल को गूगल ड्राइव में अपलोड किया जाता है, ठीक है। बताने को बेटा मैं भी बताना चाहता हूँ, बिल्कुल मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन क्या कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर बेसिकली एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। जो बेसिक क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको तो हम रट सकते हैं, जैसे भी करके रट के याद करके हम उसको लिख सकते हैं। लेकिन जो कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं, जैसे अगर उसमें कोई क्वेश्चन आ जाए कि हाउ कैन यू जस्ट सिंपली मेक अ ईमेल आईडी, राइट ऑल द स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन, तब क्या करेंगे, तो वहाँ पर आपको सारे स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन जो है अगर आप उसको समझ लेंगे, एक बार आप अपने कंप्यूटर या डेस्कटॉप पर करके देखेंगे, आपको ईजिली कंप्यूटर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है टू अपलोड अ फाइल टू अ गूगल ड्राइव फॉलो दीज स्टेप्स। तो आपको यहाँ पर कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। फ्रॉम गूगल ड्राइव क्लिक ऑन द न्यू बटन इन द अपर लेफ्ट कॉर्नर। आपको वही कंपोज की तरह यहाँ पर भी आपको न्यू बटन देखने को मिलेगा। आप उस न्यू बटन पर देखिए बना हुआ है, न्यू लिखा है, इस पर आप क्लिक करिए। न्यू पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे क्या होगा, आपके सामने एक लिस्ट आएगी। सो क्लिक ऑन फाइल अपलोड फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। उस न्यू पर आप जब क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट खुलकर आएगी। उस लिस्ट में से आपको सिर्फ और सिर्फ क्या चूज़ करना है, मतलब फाइल अपलोड, ओके। फाइल अपलोड पर क्लिक करेंगे, द फाइल अपलोड विंडो विल अपीयर लाइक दिस। अब इस तरह से आपके सामने ये फाइल अपलोड विंडो आपके सामने खुल जाएगी। इसमें से आपको सबसे पहले यहाँ से, यानी जहाँ फेवरेट, डेस्कटॉप, डाउनलोड, रिसेंट प्लेसेस, लाइब्रेरी, डॉक्यूमेंट, म्यूज़िक, पिक्चर, वीडियो, कंप्यूटर, लोकल डिस्क, सी, नेटवर्क, ये लिखा है, इसको बोलते हैं लेफ्ट पैन। और जो सिर्फ यहाँ पर लिखा है नेम, कंप्यूटर और आइकन, ये आपका राइट पैन हो गया। तो लेफ्ट पैन से आपको पहले उस लोकेशन को चूज़ कर लेना है कि आपका जो फाइल है वो किस फॉर्मेट में है, डॉक्यूमेंट है या फिर म्यूज़िक है, पिक्चर है, जेपीजी फॉर्मेट में है, किस फॉर्मेट में है। तो वहाँ से आप यहाँ पर चूज़ कर लीजिए, डॉक्यूमेंट है, म्यूज़िक है, पिक्चर है या वीडियो है। वो चूज़ करने के बाद फिर इसके बाद आपको क्या करना होता है, अब आपको अपनी फ़ाइल लोकेट करनी होती है, या फिर आप फाइल नेम बॉक्स में उस फाइल का नेम टाइप करके आप डायरेक्टली भी उसको कर सकते हैं। और ओपन पर जब आपको आपकी फ़ाइल मिल जाए, आप ओपन पर क्लिक कर दीजिए। ओपन पर क्लिक करते ही क्या होगा, द फाइल विल बी अपलोडेड टू योर गूगल ड्राइव। अब यहाँ पर इन्होंने तो कह दिया कि फाइल विल बी अपलोडेड टू योर गूगल ड्राइव, यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपके एरिया में नेटवर्क स्पीड क्या है, ठीक है। नेटवर्क स्पीड अगर अच्छी होगी तो पता भी नहीं चलेगा और आपकी फ़ाइल अपलोड हो जाएगी। नेटवर्क स्पीड इतनी अच्छी नहीं हुई, इन दैट कंडीशन आपको काफ़ी समय लग जाएगा उस फाइल को अपलोड करने में, ठीक है। तो यहाँ दिया गया बिसाइड फाइल यू कैन आल्सो यूज़ अ फोल्डर अपलोड ऑप्शन टू अपलोड अ फोल्डर, यानी कि आप एक फ़ोल्डर भी अपलोड कर सकते हैं फाइल के सिवाय। यानी ज़रूरी नहीं कि सिर्फ फाइल ही अपलोड करें। ये देखिए ये पूरी लिस्ट दी गई, यहाँ फोल्डर है, फाइल अपलोड है, फोल्डर अपलोड है, गूगल डॉक्स है, गूगल शीट्स हैं, तो आप कुछ भी अपलोड कर सकते हैं यहाँ पर, बस वो फाइल फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये टॉपिक ख़त्म होते हुए, और ये वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है, मैं इस वीडियो को यहीं पर
ख़त्म कर रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ। लेकिन बंद करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बता दूँ कि अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट कर लें, ताकि आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके, ठीक है। और इसके अलावा जो है स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। गुड बाय स्टूडेंट्स।